Hi everyone, good afternoon. Now we're going to continue with the previous class of the Indian Contract Act. Okay. Now coming to the lecture of the Indian Contract Act, we are going to discuss like the basic nature of the contract, what are the terms and conditions of the agreement, what are the basic requirements of the contract and all these things. All right. So coming to this point, when we're talking about the interpretation clause, we have already discussed the basic steps of the contractual agreement, right? The first step we have understood that is a proposal. Then we have discussed how a proposal becomes a promise. And then we have discussed the promise along with the consideration how becomes the agreement. Then we discussed how an agreement by enforceable being by the law, it becomes a contract. All right. So these steps we have already discussed in the previous class. Let's give a small recap about the previous classes and then we'll be proceeding to the next. All right. So according to section 2, clause A of the Indian Contract Act, we have understood the basic nature of the contract. And the first step of the contract we have understood that is the proposal. And we have understood what this proposal means to do something or abstain from doing something. ये बात भी हम लोगों ने समझी. So what do you understand by to do something or abstaining from doing something? I have already explained you कि हर चीज का ना दो तरीके either you influence someone to do certain kind of activity और else सेकेंड ऑप्शन होता है जहां पे आप किसी को रिस्ट्रेन करते हो या abstain करते हो फ्रॉम डूइंग समथिंग यू मतलब यू से समवन कि नो डोंट डू दिस डोंट डू दैट और एल्स यू इन्फ्लुएंस समवन कि हाँ आप ये काम करो ओके सो दीज आर द टू बेसिक नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे यू इंस्पायर समवन टू डू समथिंग or you abstain someone, you restrict someone to do certain kind of activity. So this is the basic nature of the contract. All right. So when we have studied about this, when we have talked about the proposal, what did we understand? We understood that when we are talking about a proposal, the proposal means giving an offer from one side to another. जहां पे सामने वाला अपना कंसेंट देता है करता है आप मुझे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए as we have understood in the last classes example also जब मैं आपसे 5 एकड़ का एक जमीन खरीदना चाहती हूँ एंड इन रिटर्न आई एग्री टू गिव यू 10 लाख रुपीस यहाँ पे क्या हो जाए आई एम बाइंग 5 acres of the land from you and in return I agree to pay you 10 lakh of the rupees. So what happens over here? Here यहाँ पे अगर जब मैं आपसे कोई जमीन खरीदना चाहती हूँ आपका 5 एकड़ का जमीन में अपने एट दैट टाइम व्हाट आई एम डूइंग आई एम गोइंग टू यू आई एम पुटिंग ए प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ यू कि देखिए मेरे को आपका जमीन खरीदना है आई रियली वांट टू बाय योर लैंड एंड इन रिटर्न आई एग्री टू पे यू 10 लाख ऑफ द रुपीज तो दिस इज इट यहाँ पे क्या होता है ना मैं अगर आपको किसी चीज का प्रपोजल देती हूँ अपने तरफ से अपनी साइड से वहां पे मैं आपके सामने दो पॉइंट रेज करती हूँ आइदर द पॉइंट इज यस और द पॉइंट इज नो जहां पे आइदर आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं हाँ बोलते हैं नहीं तो आप उस चीज को डिनाई करते हैं ना बोलते हैं समझ में आया सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय the proposal. So the proposal, when accepted, becomes a promise. We have also understood this. तो चलिए इसको समझते हैं प्रपोजल को जब एक्सेप्ट है ना तभी प्रपोजल क्या बन जाता है प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप मुझे आपका 5 एकड़ का जमीन दे दीजिए एंड उसी के बदले आई एम गोइंग टू पे यू 10 लाख ऑफ द रुपीज आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया दैट मीन्स इन द एक्सचेंज ऑफ 10 लाख रुपीज यू एग्रीड टू गिव मी योर लैंड टू सेल मी योर लैंड सो इन दिस केस व्हाट हैपेंड here there is a mutual understanding between you and me
आप और मेरे बीच में यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, जहां पे आपने मेरे को आपका जमीन 10 लाख रुपए के बदले देने को तैयार हो गए। So here in this case, if you ask me what is the consequence is here the promise arises. यहाँ पे एक प्रॉमिस तैयार हो गया, जहां पे दो लोग दोनों को प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रॉमिस क्या था? प्रॉमिस ये था कि आपने देंगे एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया, जमीन अगर मैं आपसे ले रही हूँ, इन द एक्सचेंज ऑफ द लैंड आई एम गोइंग टू पे यू 10 लाख ऑफ द रुपीज। सो दिस इज द म्यूचुअल प्रॉमिस बाय बोथ ऑफ अस, जहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉमिस कर रही हूँ और आप मुझे इन रिटर्न कुछ वापस प्रॉमिस कर इट। सो दिस इज कॉल्ड योर कॉन्ट्रेक्चुअल प्रॉमिस। ऑलराइट, सो हमने क्या पढ़ा? पहले पढ़ा प्रपोजल। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकेम ए प्रॉमिस। गॉट इट? So the next point comes, who is the promiser and who is the promisor, right? So the person who makes the promise is the promiser, and the person who accepts the promise is the promisee. जिसने प्रॉमिस करता है उसको बोलते हैं हम promiser, और प्रॉमिस जिसको किया जाता है, for whom the promise is made, is called the promisee. Clear? Who is the promiser? The person who makes the promise, and the person to whom the promise is being made is called the promisee. Clear? Then yes, we have studied about the consideration, and that comes under the section 2 plus D, जहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर हम कुछ भी चीज के बदले कुछ एक्सचेंज में दे रहे हैं, that is called the consideration. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे 5 एकड़ का जमीन हूं, तो उसी के बदले आई एम पेइंग यू 10 crore ऑफ द रुपीज। सो दिस इज द कंपेंसेशन अमाउंट आई एम पेइंग यू इन रिटर्न ऑफ द लैंड। गॉट इट? सो यहाँ पे कुछ पाने के बदले आई एम ऑल्सो गिविंग यू बैक समथिंग। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड द प्रॉमिस व्हेन added with the consideration, that becomes an agreement. समझ में आ गया? चलिए इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम दोनों के बीच में जमीन खरीद, प्रपोजल दिया कि मैं आपका जमीन खरीदना चाहती हूँ, आपने मान लिया। उससे के बदले हम दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ कि जमीन के बदले the amount, the consideration amount of the land will be 10 crore of the, sorry, 10 lakh of the rupees. तो आपने पहले मुझे प्रपोजल दिया, फिर आपने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली। वो प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब आपने मुझे आपका 5 एकड़ का जमीन देने को प्रॉमिस कर दिया। प्रॉमिस के बाद मैंने आपको वापस प्रॉमिस क्या किया कि ठीक है, अगर मैं आपसे 5 एकड़ का जमीन लेती हूँ, तो उसी के बदले आई एग्री टू पे यू 10 लाख ऑफ द रुपीज। तो यहाँ पे आप देने का प्रॉमिस करती हूँ और मैं आपको पैसा देने का प्रॉमिस करती हूँ। हो गया प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद यहाँ पे आता है कंसिडरेशन। प्रॉमिसर कौन है? आपको मेरे तरफ से कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? 10 लाख ऑफ द रुपीज। मेरे को, मैं जो आपको 10 लाख का पैसा दे रही हूँ, आई एम द प्रोमिजी, मेरे को आपसे क्या मिल रहा है? तो दिस इज द कंसिडरेशन अमाउंट फॉर ईच अदर, है ना? सो जब एक दूसरे को वो कंसिडरेशन अमाउंट देने को, एंड दैट बिकम्स लीगली इम्प्लीकेबल, हम दोनों के बीच में अब वो क्या बन जाता है? अभी वो प्रॉमिस एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट बिकम्स an agreement between both of us. So when that agreement is enforceable by the court of law, that becomes a contract. तो यहाँ पे यही बात आता है ना, what is contract? Contract is an agreement that is enforceable by the law, which is explained under section 2H of the Indian Contract Act, है ना? यस, सो हमने क्या डिस्कस किया? एग्रीमेंट तक आप लोगों को समझ में आ गया। एग्रीमेंट होने के बाद हुए
An agreement becomes legally enforceable, becomes legally applicable, becomes implicable by the court of law, then that agreement becomes a contract. Clear? So next point, according to section 2, clause I, an agreement which is enforceable by the law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or those, is the voidable contract. यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को ना प्रॉपरली पूरा नहीं करता है, then that contract becomes the voidable contract. Okay, just give me 1 second, guys. Yeah, and according to section 2, clause J, it speaks that a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it becomes to be legally enforceable. That means यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? An agreement which is enforceable by law, that is a contract. तो ये चीज भी साफ साफ बोल, अगर कोई एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल तो हमने उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते. दैट इज voidable अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट के हिसाब से वो अनऑथेंटिक है, इलीगल है, एंड दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड as a contract under the court of law. है ना? Sorry for the interruption. Actually, I have got an urgent call. Okay. So here it is, coming to the section 3 of the Indian Contract Act. It speaks about the communication, acceptance, and the revocation of the proposal. Okay. So let's understand the terms first. Okay. So when I ask you, what do you understand by the communication of the proposal? That means the communication, proposal need to be communicated from one person to the another person. All right. So let's understand it in a very broad manner. So when we are talking about the communication, जब हम communication तभी हम क्या समझते हैं? Communication मतलब the transfer of one thing to another. That communication might be the oral communication, the written communication, or the communication by the activity. Alright? जब आप कोई भी चीज बताना चाहते हैं या किसी के साथ किसी भी चीज को रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन ही बोलते हैं ना. तो जब मैं किसी को अपना प्रपोजल बताना चाहती हूँ, तब मैं क्या करूंगी? कम्युनिकेट करूंगी ना. जैसे कि आप मान लीजिए मेरे मन में आया कि मेरे को आपको ये चीज बता, मैंने आपका जमीन देखा, मेरे को जमीन खरीदने का मन किया. अगर वही बात मैं अपने मन पे ही रख के बैठूंगी कि हाँ ठीक है मेरे को अच्छा है, बट अगर वो बात ना मैं अपने दिमाग में अपने दिल में बैठ, वो बात मैं के सामने आकर आपको कम्युनिकेट ना करूं, तो हाउ डज इट मीन्स? नहीं रहा ना. क्योंकि मेरा दिल में जो भी थॉट्स आया, मेरा जो भी मन किया, वो तो मेरे पास ही रह गया ना. मेरा प्रपोजल जब तक आपके पास ना पहुंचा, जब तक आप ना चला कि मैं क्या चाहती हूँ, इस तो प्रपोजल ही मेरी कंप्लीट प्रपोजल नहीं. प्रपोजल तभी तक कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक हम जिसी को प्रपोजल दे रहे हैं उसी के नॉलेज में ना आ जाता है ना. तो इसीलिए communication is the medium which is the most important thing, via which we communicate our emotions, our thoughts, our proposal to the front person, to the another person who is in front of us. Got it? So coming to the second point, acceptance of the proposal. When what is, how does it means? Okay, the proposal is said to be accepted. That means जब मैं आपको कोई भी चीज बोलती हूँ, अगर आप उसी चीज में हाँ बोल देते हैं, आप एग्री कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये चीज बताया कि चलो ये बाहर घूमने चलते हैं, चलो ये खाना, चलो वो खाना खाने चलते हैं. वहां पे क्या होता है? अगर मैं आपको कोई चीज प्रपोज कर रही हूँ, कोई चीज बोल रही हूँ, देन व्हाट डू यू डू? You agree with my terms and conditions. You approve it.
आप हाँ बोल देते हो कि हाँ ठीक है, मेरे को ये काम करना है. सो दिस इज द acceptance of the proposal. Then third number one is the revocation of the proposal. जहां पे आप डिनाई करते हो या फिर आपको मैं मोना को ये प्रपोजल दिया था, बट अभी मैं रिवोक कर रही हूँ, मना कर रही हूँ. मैं आपको प्रपोज करती हूँ कि मेरे को आपका जमीन खरीदना है, और आप मुझे वहां पे मना कर देते हो कि नहीं, मेरे को अपना जमीन नहीं बेचना. ऑलराइट, गॉट इट. सो यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द बेयर. जस्ट लेट्स रीड इट वंस. The communication of the proposals, the acceptance of the proposal, and the revocation of the proposals and acceptances, respectively, are deemed to be made by any act or omission of party proposing, accepting, or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance, or revocation, or which has the effect of communicating it. तो बेसिकली ये बोला जाता है कि आप किसको प्रपोजल कम्युनिकेट, वो मैटर नहीं करता. इट डजंट मैटर व्हाट इज इन योर माइंड, व्हाट इज योर प्रपोजल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्रपोजल. बट द मेजर वन थिंग ऑफ द प्रपोजल इज द प्रपोजल नीड टू बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड. प्रपोजल अगर आप किसी को कर रही हो ना, वो प्रपोजल सामने वाला के पास पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है. क्लियर. सो नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट. ओके, द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge to the person to whom it is made. सिंपल ही बात है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपसे कुछ सामान खरीदना, मैं आपसे आपका जमीन ही खरीदना चाहती हूँ मान लीजिए. जब तक मैं आपको अपना दिल की बात नहीं बताया, तब तक आप क्या भगवान है? आप मेरे घर पे आके देखेंगे कि नहीं नहीं, ये बंदा तो मेरा जमीन के लिए इंटरेस्टेड है. नहीं होता ना. सो जब तक मैं अपना दिल का बात, मैं क्या चाहती हूँ, आपको वो बात सीधा सीधा क्लियरली कम्युनिकेट ना कर दे, तक प्रपोजल इज नॉट कंप्लीट, है ना. सेकेंड क्या है, द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन. ओके, तो ये गया कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल. तो कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. जिसी के लिए प्रपोजल है, जब उसको ये चीज पसंद में आ जाएगा ना, देन द प्रपोजल बिकम्स कंप्लीट. सॉरी, जब जब सामने वाला को वो चीज उसका नॉलेज पे आ जाएगा, तभी द प्रपोजल बिकम्स कंप्लीटेड. देन कम्स द पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टेंस. तो एक्सेप्टेंस जो आपका होता है ना, acceptance need to be completed on behalf of the proposer and on behalf of the acceptor. दोनों की तरफ से कंप्लीट होना चाहिए. सो एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है, इट कंप्लीट्स as against a proposer when it put in a course of transmission and out of the power of the acceptor, है ना, and against the acceptor when it comes through the knowledge of the proposer. चलिए, दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो पहले हमने क्या समझा, प्रपोजल हो गया. मान लीजिए प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो गया. आपने मेरे को बोला कि मैम, हम आपको मंथली 50,000 रुपीज दे रहे हैं, आप आ जाइए हमारे साथ पढ़ाइए. ओके, तो यहाँ पे इन हाउ मच अमाउंट आई एग्री, 50K, है ना. सो व्हेन आपने ये बात मुझे प्रपोज किया, आपने मुझे प्रपोजल दिया ये बात का कि मैम आप महीने का हमारे बच्चों को पढ़ाइए, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रपोजल हो गया. बट प्रपोजल कब कंप्लीट होगा, जब आपका ये प्रपोजल मेरे नॉलेज पे आएगा कि हाँ मेरे को पैसा मिलेगा एंड इन रिटर्न आई हैव टू टीच, है ना. सो व्हेन दिस थिंग कम्स टू माय नॉलेज, द प्रपोजल इज बीइंग कंप्लीटेड. बट नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस, जब प्रपोजल हो गया उसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है ना. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्टेंस,
द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंप्लीट। एक्सेप्टेंस जब हाँ, और एक चीज, एक्सेप्टेंस नीड टू बी कंप्लीटेड अगेंस्ट टू पर्सन्स। फर्स्ट द प्रपोजर, सेकेंड द एक्सेप्टर। प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाता है? जब एक्सेप्टर ने अपना एक्सेप्टेंस भेज देता है टू द प्रपोजर एंड दैट बिकम्स आउट ऑफ हैंड ऑफ द प्रपोजर। मान लीजिए मैं उड़ीसा में रहती हूँ, आप यूपी में रहते हैं, कोई दिल्ली पे रहता है, कोई बिहार पे रहता है। उन लोगों ने मुझे कुछ प्रपोजल भेज चुके हैं। आई हैव गॉट दिस। अब ये प्रपोजल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उनका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, मैंने क्या किया, मैंने उस एक्सेप्टेंस को, एक्सेप्टेंस का जो लेटर है उस मतलब स्पीड पोस्ट में डाल दिया। ओके, एंड नाउ आफ्टर सेंडिंग इट via the speed post, means after sending the speed post, what happens? Oh, that come out of my control. एक बार मैं जाके स्पीड पोस्ट का ऑफिस में उसी को दे के आ गया ना, उसी के बाद क्या मेरे एक्सेप्टेंस पे मेरा कोई कंट्रोल है? नहीं। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि मैंने जो मैसेज उनको भेजा या फिर मेरा जो एक्सेप्टेंस मैंने तक आपके पास पहुंचेगा। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच यू, है ना? सो जब मैं स्पीड पोस्ट में डाल दिया, मैं अपना सारा ड्यूटी कर लिया एंड थिंग्स बिकेम आउट ऑफ माय कंट्रोल, थिंग्स बिकेम आउट ऑफ माय हैंड, तभी द एक्सेप्टेंस इज बीइंग कंप्लीटेड अगेंस्ट whom? अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट हो जाता है जब एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस भेज देती है एंड दैट एक्सेप्टेंस आफ्टर सेंडिंग इट बिकम्स आउट ऑफ हैंड ऑफ द प्रपोजर ऑफ द एक्सेप्टर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टर का जो एक्सेप्टेंस है कंप्लीट होता है अगेंस्ट हिमसेल्फ और आवरसेल्फ, मींस अगेंस्ट द एक्सेप्टर when the acceptance is being complete, when it comes to the knowledge of the acceptor, है ना? Sorry, when it comes to the knowledge of the proposer, उसको जिन्होंने प्रपोजल दिया था, जब उसके नॉलेज पे ये बात आ जाती है, then the acceptance becomes complete. Okay, so yeah, what we are talking about? Yeah, we are talking about the proposal and acceptance. acceptance के अगर मेरे पास कोई प्रपोजल आता है एंड मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर भी लेती हूँ, देन दैट एक्सेप्टेंस बिकम्स कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज सेंट टू द प्रपोजर बाय द एक्सेप्टर एंड बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द एक्सेप्टर। जब मैंने वो लेटर दिया, एक्सेप्टेंस लेटर ऑलरेडी भेज चुकी हूँ और कोई भी कंट्रोल नहीं है, देन द एक्सेप्टेंस is being completed against the proposer। क्योंकि मैंने अभी लेटर आपके पास पहुंचे या ना पहुंचे, that is not my responsibility। okay, then coming to the part कि जहां पे acceptance against the acceptor, खुद के अगेंस्ट अगर मैं एक एक्सेप्टर हूं तो मेरे लिए वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जब आपका नॉलेज में आएगा कि हाँ, these are the things। Okay, then coming to the next part, the communication of revocation is complete. Alright, so what it speaks as against the acceptor when it comes to knowledge of the people, the communication of the revocation is complete as against the person who makes it when it put in the course of the transmission to the person to whom it is made, and secondly as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge। got it? यहाँ पे प्रपोजल पे और आपका क्या क्या था उसका एक्सेप्टेंस में, दोनों में जो था रिवोकेशन में कि उसका रिवर्स होगा। तो हमने प्रपोजल पे हुआ या जो रिवोकेशन पे हुआ, यहाँ पे क्या डिस्कस, वी डिस्कस्ड ओवर दैट अगर एक बात बोला जाए कि द act of the communication of the act of the revocation is complete against
द प्रपोजर, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने का प्रपोजल दिया था बट आपने दिया, या फिर आप भेज दीजिए बट मैंने, इफ आई एम रिवोकिंग, इफ आई एम डिनाइंग, तो मेरा जो डिनाई करने का जो हक है, माई communication of the revocation is complete against the person who makes it, means against me, against myself, if I am the same person. That completes when I put it in the transmission to the person to whom it is made. जिन्होंने बनाया था, वो प्रपोज्ड मी, जिसने मुझे प्रपोजल दिया था, मैं उसको जब मेरा रिवोकेशन इन्फॉर्म कर देती हूँ, मेरे तरफ से स्पीड पोस्ट के जरिए मानो, टेलीफोनिक के मानो, किसी भी तरीके से मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ, इन्फॉर्म कर देती हूँ कि चलिए मैं आपका सामान या आपका जमीन खरीद नहीं रही. गॉट इट? when it complete against the acceptor, sorry, against the acceptor and against the proposer, when against the person to whom it is made, the proposer, when it comes to his knowledge, जब जिन्होंने ये रिवोकेशन बनाया है, जब तक उसको नॉलेज आएगा तब तक इट मस्ट बी कंप्लीटेड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो इन समरी बता रही हूँ, तीन चीज किया था. पहला हुआ आपका प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल. दूसरा हुआ कम्युनिकेशन ऑफ द, पहले हुआ कम्युनिकेशन ऑफ द प्रॉमिस. दूसरा हुआ कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड थर्ड हुआ कम्युनिकेशन ऑफ द रिवोकेशन. सो कम्युनिकेशन ऑफ द प्रॉमिस तभी कंप्लीट होता है जब मैं अगर प्रॉमिस कर रही हूँ, इफ आई एम प्रॉमिसिंग यू एनीथिंग, व्हेन दैट प्रॉमिस इज बीइंग इन्फॉर्म टू यू, जब आपके किस चीज का प्रॉमिस मैंने आपको किया है या फिर मुझे किस चीज का प्रॉमिस किया है, व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर्ड कम्युनिकेशन, जहां पे दोनों पार्टी को प्रॉमिस के बारे में सारा चीज पता होता है, इन दैट केस द प्रॉमिस इज सेड टू बी कंप्लीटेड. Coming to the next part, when we are talking about the acceptance of the promise, then अगर हम acceptance की बात करें, then acceptance is completed against the person who accept it and the person to whom the acceptance is made. अगर मैं प्रपोजर हूँ, आप एक्सेप्टर है, तो आपका जो कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस है वो कब कंप्लीट होगा? अगेंस्ट द प्रपोजर, जब आपने आपका एक्सेप्टेंस पोस्टल के थ्रू हो या कोई स्पीड पोस्ट के जरिए हो, कोई लेटर के जरिए हो, फोन कम्युनिकेशन के जरिए हो, किसी भी के जरिए हो, आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया और इट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल नाउ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक लेटर भेजा था, मेरा ऑफर या मेरा प्रपोजल लिख के, आपने उसी लेटर को एक्सेप्ट कर लिया एंड इन रिटर्न यू सेंट मी बैक ए लेटर जहां पे आपने अपना एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है. एंड इन दिस केस, if you tell me the communication of the acceptance is complete against the proposer when it is out of the hand of the person who makes the acceptance. मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया, मैंने आपको एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भी कर दिया तभी, और दैट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल नाउ. मैंने आपको भेज दिया, बाकी आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा, बट जिस मोमेंट में मैंने आपको एक्सेप्टेंस भेज दिया, उसी मोमेंट पे आपके अगेंस्ट मेरा कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. अगर मैं पूछूं तो मेरा खुद के अगेंस्ट, मैं जो एक्सेप्टर हूँ, मेरा अगेंस्ट व्हेन इट विल बी कंप्लीट, व्हेन इट विल कम टू योर नॉलेज. जब मैंने आपको भेज दिया तभी आपके अगेंस्ट मेरा ड्यूटी, और जब वो आपका नॉलेज पे आ गया, आपके पास पहुंच गया, तभी मेरे खुद के अगेंस्ट द एक्सेप्टर, द एक्सेप्टेंस बिकम कंप्लीटेड. क्लियर? देन द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वी हैव टॉक्ड, लाइक द कम्युनिकेशन ऑफ द रिवोकेशन. ये रेसिप्रोकल तरीका, अगर मेरे को आपने कुछ प्रपोजल दिया है एंड मैं रिवोक कर रही हूँ, मैं मना कर रही हूँ, तभी मेरा कम्युनिकेशन ऑफ द रिवोकेशन इज कंप्लीट against the person to whom it is made. जब मैंने अपना रिवोकेशन आपको when the person against the person to whom it is made,
व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। यहाँ पे रिवोकेशन पे क्या होता है ना, जो केस हमारा एक्सेप्टेंस थी का सीधा उल्टा होता है। एक्सेप्टेंस में हमने क्या पढ़ा था, जब आप द पर्सन हु इज द एक्सेप्टर, उसी के अगेंस्ट कब कब कंप्लीट होता है, जब वो चीज सामने वाला को पता चल कि हाँ ठीक है, दिस पर्सन हैज एक्सेप्टेड द थिंग एंड नाउ द एक्सेप्टेंस हैज बीन कंप्लीटेड, तभी मेरे खुद के अगेंस्ट वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए। बट इन द केस ऑफ द रिवोकेशन, द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट माई सेल्फ व्हेन इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, और मैंने अपना रिवोकेशन भेज दिया है, बट वो सामने वाला के पास पहुंचा नहीं है, इवन इफ ये नहीं पहुंचा है, that acceptance is complete against myself, and in the same case against the person to whom it is made, जिसी के लिए ये रिवोकेशन, जब उसका नॉलेज पे वो चीज आ जाता है ना, then it is complete against the person to whom it is made. Clear? देन यहाँ पे हमने बात किए थे रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की, एंड यस, नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Section 10 of the Indian Contract Act, which speaks about that what agreements are contracts. किसी तरह का एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। पहला चीज, an agreement which is enforceable by the law is a contract. जहाँ पे हमारा तीन चीज, पहला the competency of the parties, second the lawful object, and third is the lawful consideration. अगर ये तीन चीजों का प्रेजेंस है, then a contract become an agreement becomes a valid contract. Got it? So what are these basic things? Lawful object, lawful consideration, and the competency of the parties. That means अगर मैं और आप कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, किसी भी तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, so in that case there must be the presence of the parties who are competent to do the contract. अगर आप यहाँ पे competency का बात करते हैं ना, what do you mean by the competency? That means the person who are doing agreement with each other ना, वो mentally unstable नहीं होना चाहिए, they should not be bankrupt, they should be mentally stable. That person who is doing the contract should be legally authorized to do the contract. उसी का एज 18 साल से कम नहीं होना चाहिए. If that person is below 18 years or that person is a minor, in that case, that contract is not a valid contract. है ना? So पहले एज फैक्टर का कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए. दूसरा, the person who is doing the contract must be competent to do the contract mentally. उसका दिमागी हालात खराब नहीं होना चाहिए, and that person should not be bankrupt to do the contract. तो ये हुआ the competency of the parties to do the contract, है ना? The second point, lawful object, and the third point, lawful consideration. Let's understand this. When we are talking about the lawful object, that means जो भी चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, whatever the agreement is all about, that must be lawful. अगर एक जमीन का खरीदने के लिए हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, वो जमीन लीगली ऑथराइज्ड होना चाहिए बेचा जाने के लिए. That land should be authorized to sell. If you want me to do certain kind of help for you, तो वो काम करने के लिए मेरा एलिजिबिलिटी भी तो रहना चाहिए ना. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मेरा दुकान से कुछ सामान खरीद रहे हैं, पहले मेरा दुकान लीगली ऑथराइज्ड है कि नहीं वो सामान बेचने के लिए, वो देखा. अगर मेरा दुकान वो सामान बेचने के लिए लीगली ऑथेंटिकेट है, तभी बात आता है कि अगर आप मेरे से वो सामान खरीद रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज एन लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड सेलिंग ऑफ दैट लॉफुल ऑब्जेक्ट इज नॉट अनऑथेंटिक इन नेचर, है ना? एंड द लास्ट पॉइंट, लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स अगर मैं आपसे कुछ सामान खरीद रही हूँ, उसी के बदले मैं आपको जो कंसिडरेशन दे रही हूँ ना, दैट शुड बी लॉफुल. इट शुड नॉट बी अनलॉफुल इन नेचर. ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे आपका जमीन खरीद लिया और उसी के अगेंस्ट मैंने आपको कोई
जुआ का अड्डा बता दिया, या फिर मैंने आपको कोई बेटिंग में हेल्प कर दिया, मैंने आपको ऐसा कोई गांजा या अल्कोहलिक सामान लेके दे दिया जो कि इंडिया पे अलाउड नहीं। सो बोला जाए तो इन रिटर्न whatever consideration is paying by each other to the parties, that consideration amount or consideration thing should not be unethical in nature. वो गलत नहीं होना चाहिए. So these are the basic terms and conditions about the contract. तो ये about the revocation of the agreement के बारे में. This is all for today, and any doubt you can ask me in the next class, or you can also ask me in the chat box itself. This is all for today, and we are wrapping up the class right now. And the next class will be continue about the constitution from 4:10 p.m. onwards. That is it. Thank you.